फाइन इधर सर. लाइव आता. ओके. So good evening, friends. This is 5 p.m. Saturday, and 5 p.m. Saturday is the time on Deal Facebook page for सफर शख्स से शख्सियत तक. People who have grown beyond being just a common person, while they are people from amongst us, face the challenges and made it towards achieving their life's goals despite all challenges, whether pre-COVID, post-COVID, or during COVID. So immaterial challenges will always be coming. COVID is one of the challenges that came. Therefore, we bring to you all those people who have pre-COVID also faced challenges. During COVID, they have adapted. Post-COVID, they are still going strong. And what is it that keeps them going? कैसे कर लेते हैं ये सब? इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए, इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हम ऐसे व्यक्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में उन सभी चीज़ों का पालन किया और अपने जीवन को बेहतर बनाया, और उनसे हम सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को अपने सही मार्ग पर ले जा सकते हैं. परेशानियां तकलीफ उनको भी आई, लेकिन परेशानियों से तकलीफ़ों से भागे नहीं, उनका डट कर सामना किया, उनको पछाड़ा और आगे बढ़ते गए, क्योंकि परेशानियां और तकलीफ़ें तो आती रहेंगी, ये तो जीवन का एक अंग है. तो उनसे बचकर हम कब तक भागेंगे? और ऐसे ही एक शख्स जिन्होंने अपनी शख्सियत कायम की, व्यक्ति इन द व्यक्ति विशेषवादंतः व्यक्ति, तो ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे सामने हैं, डॉक्टर मल्लिकार्जुन डंबल. उनको मैं बहुत ही करीब से जानता भी हूँ. ये मेरा मैं कह सकता हूँ कि सौभाग्य है. और मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने बिल्कुल आज हम सबसे बात करने के लिए समय निकाला, जबकि ये उनका ओपीडी का टाइम है. तो ऐसे में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन डंबल का. उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, ही इज द फाउंडर ऑफ अथर्व आयुर्धामा, dedicated to help people live medication free life, help people live a life, healthy life, so that they require least medication, and if required the medication should be सूक्त, जिसे कहते हैं सही, बिल्कुल ना कि अनावश्यक. तो such a person who is living, breathing, talking always about how to help people live a hospital free life, someone who is looking at creating a healthy life for people and working tirelessly towards that. During COVID times, he achieved something very special, and we will talk about that when we get into a discussion with him. Instead of me telling you about it, let us hear it from him. It is magical the way when you dedicate yourself to what you dream and desire, you can achieve results. So, without wasting more time, we welcome Dr. Mallikarjun Dumble. Thank you so much, sir, for being with us today. नमस्ते. थैंक यू. We are extremely pleased to have you today as a part of. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. So, sir, फाइन. I just gave a brief introduction about it. So, and I know there is a lot to it. And as we get into the discussion, we will talk about it. There are people who have questions about health. There are people who have questions about challenges. And you are the right person to face both these questions because you have faced both of these in life and you keep doing that every day. So, it will be wonderful to hear it from you. You could speak in Hindi, English, a mix of that, and where you want, you can speak in Kannada. I can translate it for you. Either ways, let's take it that way. And Dr. Mallikarjun Dumble comes from Shimoga, a town in Karnataka which is gathering a lot of fame now. It is also the town area from where our Chief Minister belongs to, that is Mr. Y.S. Yediyurappa. B.S. Yediyurappa, sorry. So, sir, over to you. फाइन. A little introduction about yourself, and then we will take it forward. ओके.
Welcome to all this session. Myself, Dr. Mallikarjun, or I'm the Shishya of Dr. M. Ishwar Reddy, who taught me not only the Ayurveda and the entire life he taught it, while who taught entire life during my studies life in BAMS. Fine. हम सबको एक व्यक्ति पीछे रहना चाहिए, मीन्स गुरु रहना चाहिए. हमेशा that guru will take care of us internally both externally. So एक संस्कृत श्लोक है, अभ्युदय and निश्रेयसा. Abhyudaya and Nishreyasa is the together it is success. Only Abhyudaya is not a we cannot tell it as a success. Only Nishreyasa is not tell it as a success. Both means growth internally and externally. Human being grow internally as well as externally is a ideal and is a complete growth. So based on that, my guru is मेरा हाथ पकड़ के अभी भी चला रहा है. He is not in the form of Sharira, but it is in the Chaitanya form. He will do everything, and whatever the success Dilip ji ने बोला, whatever the success from Atharva, from our side, it is due to our great soul Dr. M. Ishwar Reddy sir. So sir ji. So wonderful. The photograph that I see behind you. हाँ sir. May I know if that is? Photo ಕೊಡಿದ Ishwar Reddy sir tomorrow. So that is Yes. your guru, Mr. He is Ishwar. he is the Dr. Ishwar Reddy. Okay. Okay, fine. I'll give the brief introduction about my Guruji. Sure, sure. He's just he's not a teacher. He's not a professionally doctor. The Acharya, what Ayurveda Acharya we are telling, na, Charkacharya, Shushrutarya, Rogbhatacharya, the rebirth of that Acharya. His life is wonderfully dedicated to Ayurveda, and he's 24/7. He think Ayurveda, he eat Ayurveda, he breathe Ayurveda, and everything. And that's why ऐसा गुरु नहीं मिलता, आसान से किसी को नहीं मिलता. इट इज भाग्य है हमारे के लिए. तो हमने उसको वही सोचा जो आचार्य ने दोबारा आए, क्योंकि आयुर्वेदा इज नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, एंड आयुर्वेदा इज नॉट ओनली द मेडिकल साइंस, इट इज द लाइफ साइंस. कैसे उधर आप आगे मैं बात करता हूँ, तंत्र युक्ति के बारे में कुछ है, तो सारा टोटल साइंस है आयुर्वेद में. तो आवर गुरुजी not only teach the medicine, not only teach the disease, he teach everything, life and everything. That's why he is a acharya. So entire thing, what we breathe, what we eat, because of him, and because of now also because of him. So very interesting and a wonderful start to the conversation. Life science. So Ayurveda is not just about medicine. making a healthy life, but it is also a life science which also teaches how to live. Definitely. Acharya talks about how namma achara, how should we हमारा आचार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसा होना चाहिए, एक्टिविटीज. हाँ, ये भी मतलब गुरु से मिलता है. और आपने जैसे कहा कि सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे गुरुजी आपको मिले. हाँ जी. तो और कहीं ना कहीं उनके ब्लेसिंग्स को और उनके उन्होंने जो कुछ सिखाया उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ. सही है, आप भी बिल्कुल इसी सही सेवा में लगे हुए हैं जी. तो सर शुरू करते हैं आपके बचपन से जी. तो आपका बचपन, चाइल्डहुड, हाउ यू लिव्ड योर चाइल्डहुड एंड हाउ यू until you became a licensed Ayurvedic doctor. So give us a little brief of. एक छोटा सा गांव है हमारा, से अबाउट 50 फैमिलीज, दैट्स ऑल. बहुत छोटा सा गांव से हम पैदा हुआ था, वो उधर से. लेकिन वी लिव्ड नेचुरली, नो एनी एडिशनल दिस वन, टीवी मोबाइल्स वगैरह तो दैट टाइम तो नहीं था. and natural, everything is natural, water, air and everything. So हम रोज
totally one thing in my childhood, टोटली इनएक्टिवनेस यार, बेजार बोलता है ना वो, मेरा थकावट हुआ, बेजार हुआ, वो कभी भी एक एक सेकंड में दिमाग में भी नहीं आया, दिल में भी नहीं आया, कर्म में भी नहीं आया, क्योंकि उतना एक्टिविटी रखा था हमको। सुबह उठे उठे 5 बजे, बचपन है, 5 बजे उठते हैं सब गांव, गाय का संभालना, वो संभालना, उससे दूध लेना, ये सब सबसे शुरू करके स्टडीज, बारे बाद में खेती, सब सब वो चलता रहता। तो टोटली वो जब रात आता है ना, नींद हो तो बस सुबह तक हम कहाँ है पता नहीं, खो जाता था। तो इतना नेचुरल वे में हमने और गांव में उस, पता नहीं आज आज का वैसे नहीं है, लेकिन उस टाइम कैसा था, वो गुस्सा तो था लेकिन द्वेष नहीं था। द्वेष नहीं था, हमेशा बहुत कहता, अच्छी बात आपने हाँ, कही कि गुस्सा था, हाँ, द्वेष नहीं हाँ, था। द्वेष नहीं था, गुस्सा में डांट पड़ते थे, मारते थे, पापा ने, और इसने, ताता ने, दादी ने, सब ने, लेकिन इतना प्यार से हमको ग्रो किया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रो फॉर द इंटरनल ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल ग्रोथ, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस है ना, द ह्यूमन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज बेस्ड ऑन द childhood circumference as well as the familial this relation. So एनवायरमेंट that's है। so important. And where हम गांव में बोला था कि 50 फैमिलीज था, बस सारा का सारा रिश्तेदार है उधर, अच्छा। कोई बाहर वाला नहीं, कोई वाले, सारे का, किसी घर में खाता था, किसी में मक्खन खाता था, किसी में वो देख, जैसा अगर अभी हम याद करें तो कृष्ण जैसा का, ये तो कृष्ण का पता बोले, लेटर एज में पता चला कृष्ण कैसा कैसा कैसा, लेकिन उस टाइम तो अगर सोचे तो अभी वैसे ही, हम ऐसे ही ठंडा दूध पीता, ठंडा नहीं, धारोष्ट क्षीर बोलता है, वैसा हम्म। पीता था, सीधा सीधा गाय से जो लेता था वही दूध ऐसे ही पीता था। तो टोटली नेचुरली लाइफ, so that's so important for mental growth. And what about telling about the physical growth? See, मेरे को बुखार होकर के ऑलमोस्ट लगभग पता नहीं 30 साल हुआ गया, पता नहीं क्या वो बात है। सेवेंथ, हाँ, व्हेन वाज आई वाज इन सेवेंथ, दैट टाइम एक बार अच्छे बुखार आए तो वही याद है, बाकी तो है ही नहीं उतना चीजों। मतलब सेवेंथ के बाद से अब तक जीवन में बुखार ही नहीं आया। हाँ, बुखार नहीं है, जो वैक्सीनेशन वगैरह वो देते थे ना स्कूल में, कलरा के लिए, उसके लिए हम्म। वैक्सीनेशन, उस दिन सब लोग ये करता था क्या, एक दिन रुक 2 दिन गया। रेस्ट लेता था। हाँ, मेरे को वैसा वैसा, हाँ, होता है, टोटली ऐसा नहीं हुआ था, बिकॉज मे बी द जीन्स एज वेल एज द फूड, द फूड स्टाइल ना, हमके कन्नड़ में कहा था, क्या बोलता था वो, मग उंड्रे केड़ला, मग हम्म। उंड्रे केड़ला, कितना भी खाओ, खाते रहो, बच्चे खाए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो खाते रहेगा। तो जो नेचुरल फूड हमेशा किसी को आते बोलते, ससुरा वो था, मम्मी था, दादी था, वो मक्खन कुछ देता था, हम खा के बस जबरदस्ती काम में बैठता था। तो दैट्स वाई आई एम, आजकल लोगों को मैं क्या बोलना चाहता है इसका इसका बारे में, अगर बाल्य का सोच के बोला तो 24/7 फिजिकली इसमें रखिए, बच्चों को, एक्टिव रखिए। पर्टिकुलरली बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए। उसका ध्यान को बिठाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, उसका जरूरी नहीं है वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। बचपन बचपन में कुछ किसी एक काम में घुस गए तो बस काम ही, बस वो राइट। पूरा अपना भी भूल जाता है। सो दैट्स वाई डोंट डू मेडिटेशन विथ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर ऑलवेज इन द मेडिटेशन स्टेटस में रहता है वो। So that's why don't force them to do all those things. Physical, let them do physical activity more. That is the success is very important in that way, because as I'm a Ayurveda doctor, so each and every cell is doubling in that phase, actually doubling, so tripling. So like that growth is there, na? So each and every cell should grow appropriate and should grow healthy. आपको ड्रम स्टिक में बोलता रहता पेशेंट को, ड्रम स्टिक का देखा, ड्रम स्टिक को उड़ो ना, वो भी पेड़ बनता है, राइट। टीक उड भी पेड़ बनता है। देखिए कितना डिफरेंस है, दोनों हाइट में सेम रहते हैं लेकिन कितना डिफरेंस है। तो ड्रमस्टिक ऐसा बहुत ग्रोथ तो कमजोर है। हाँ, कमजोर रहते हैं ना, बहुत कमजोर रहते हैं बच्चों, तो ग्रोथ रहेगा ही, वो जीन्स का है, वो तो 5 फीट आता ही है, लेकिन कैसा आया, वो ड्रमस्टिक जैसा आया, एक ही टीक उड जैसा आया।
वो वेरी इंपॉर्टेंट है बचपन में, इसलिए अच्छा तरह से नेचुरल फूड एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। सर, दिस इज अ वंडरफुल कंपैरिजन जो आपने बताया अभी, कि ड्रमस्टिक एंड टी फूड का। teakwood tree. Teakwood known for its strength, drumstick equally weak. सो ग्रोथ दोनों में है, मतलब बच्चे बड़े होंगे बट वो ड्रमस्टिक का ट्री जैसा बनते हैं या टीकवुड का ट्री जैसे बनते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी ट्रीट देम, हाउ वी डील विद देम, इनपुट किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी। Brilliant, wonderful. So you had a healthy life because of the village life and the activities that you were doing. हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। So, you did your graduation. You graduated as a BMS doctor from Shimoga. फ्रॉम बಳ್ಳारी, तारनाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, Okay, बಳ್ಳारी। okay. हाँ, And आई विल टेल यू। हाँ, yeah, please carry on, sir. I will tell you about the educational this one. एक्चुअली में इंटेलिजेंट तो पता नहीं था, तो सही बहुत अच्छा था। हमेशा हर एक टीचर हमको ये करता था, अप्रिशिएट करता था, ये बहुत अच्छा पढ़ता है, सब सब बचपन में वो इसमें लेकिन उसमें टीचर्स का रोल बहुत बड़ा है। टीचर्स का रोल, क्योंकि बच्चों कहाँ स्ट्रक हुआ उससे ही बढ़ना चाहिए। कहाँ स्ट्रक हुआ ये बच्चे, सिर्फ हमेशा ये नहीं आता आपको डांटते रहो, नहीं आता नहीं आता, वो बोलना नहीं जरूरी नहीं है, उनका ढूंढना चाहिए कहाँ स्ट्रक हुआ हो। तो ऐसा गुरु देखिए, ये सौभाग्य तो सौभाग्य है। मैं बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कोट्टूर में बीएससी के लिए गया था। मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी मिला था गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो छोड़ के आयुर्वेद आया, तो दट से बीएससी पहले शुरू किया मैंने। तो बीएससी में डॉक्टर एस बी बद्र शेट्टी था, SBS बोलता था हमने। Okay. वो इतना इतना ये है, गुरु है। गुरुत्व, गुरु तो क्वालिटी है ना, टीचर इज नॉट ए गुरु, इट इज गुरुत्व इज एंटायरली डिफरेंट। तो वो हमेशा सीखने के लिए बहुत ये रहता था उसका। अगर मेरे को एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है तो अगर वो आंसर नहीं दिया, एक ही बार हुआ ऐसा, वो अलग बात है कि एक बार आंसर, हाँ एक बार आंसर नहीं मिला, कल तक पढ़ के वो कितना जोर से मेरे तरफ भाग के बोलता था, ये देखिए ये आप क्वेश्चन पूछा था ना ये। तो इन्हों में एक्चुअली क्या हुआ, CBZ मैंने लिए थे, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जुअलॉजी। तीनों तीनों प्रोफेसर को एक साथ में बैठा था मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग को वो कुछ अलग ही चीज आता था। मैं केमिस्ट्री को पूछता था क्यों वो केमिकल बॉन्ड चेंजिंग चेंजेस करे तो बस कुछ भी मिट्टी भी सोनी बन जाता है, just to change the this one bonds and just to change the molecules, that's all. Right. मेरे को ये दुनिया में पूरा केमिस्ट्री दिखता था तब पूरा दुनिया केमिस्ट्री जैसा, क्या केमिकल से मिलता था। तो जुअलॉजी सर को वो बैठा करके मैंने पूछे लेगा, क्या क्या ऐसा कर सकते, क्या कुछ भी लेकर के कुछ भी करो, बनाओ, सोने मिट्टी बनाओ, मिट्टी सोने बनाओ। मेरे पूछा था, वो एक ही क्वेश्चन डाला, कहाँ से उतना एनर्जी लाते हैं आप। सर, ये कहीं राहुल गांधी सुन लेंगे तो बोलेंगे कि आलू को सोना बना दो, वो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं। ये है ना, वो देखिए ये क्वेश्चन है ना, सर ने पूछा एक क्वेश्चन, तो कन्वर्ट कर सकते हैं, मिट्टी से सोने कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप। वो एक बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया, क्योंकि वो एनर्जी इज द मेन रोल फॉर कन्वर्शन ऑफ वन थिंग टू अनदर। एनर्जी एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्वर्शन ऑफ मिट्टी टू सोने बनने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एक बच्चे को बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बनने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, सो टोटली नीड एनर्जी। तो ये सारा तब से शुरू हुआ ये जर्नी, क्या हुआ, कैसे हो रहा है ये जगत वगैरह। तो दैट्स द बेस्ट बेस फॉर इन द BSc। बाद में हम बल्लारी हमको मिला, तो बल्लारी में ईश्वरी सर, एक्चुअली फर्स्ट 6 मंथ आयुर्वेदा बहुत अजीब अजीब से, आसान क्या क्या है, आसान नहीं अजीब से दिखता था। क्या पूरा अब तक मॉडर्न साइंस पढ़ के गया था, तब पूरा पूरा संस्कृत में श्लोकास है। फर्स्ट 6 मंथ तो बहुत मुश्किल नहीं है वो। मेरे गांव डिफरेंट। का आया, नहीं ऐसा नहीं लगा, मेरे गांव को आया मैंने, अच्छा। मेरे घर को आया, ऐसा लगता था, लेकिन समझ में नहीं आता था क्योंकि संस्कृत। तो फर्स्ट 6 मंथ तो यही चक्कर में बेटा, लेकिन
वेरी वेरी फॉर्चुनेट वी आर। हमारा गुरुजी क्लास लेता था फाइनल ईयर के लिए, लेकिन हमारा टच शुरू हुआ फर्स्ट ईयर से, ओके। क्योंकि पता नहीं क्या वो एक्चुअली गुरु शिष्य का संबंध वैसा रहता है, अट्रैक्ट एकदम एक का एक अट्रैक्ट हो जाता है उन्हीं का में। एक्चुअली शिष्य का रोल बहुत कम है उस टाइम, गुरु सेलेक्ट करता है। हाँ, ही इज द वन हु इज द एग्जैक्टली, हम बोल सकते हैं उसको, हम अंदर कृपा कर सकते हैं, उसको दिखता है इमीडिएटली वो कैच करेगा। तो दैट्स वाई हमारा गुरु शिष्य का ये शुरुआत से जुड़ना शुरू किया। तो दैट्स वाई तो लाइफ है ना, लाइफ टर्निंग एंटायर लाइफ उनसे शुरू किया टिल द आयुर्वेदा completion. Every day we are touching with Dr. Rameshwar itself, and he taught life and everything based on the Ayurveda. Wonderful. No other this one based on the One, Shastra of Ayurveda. one very interesting thing that I look at here is matter can neither be created nor destroyed, but it can हाँ, be converted, and you need conversion energy definitely. for it. हाँ, And उसी principle को आपने you've explained here that if you have the right combination of energy, you can convert the existing potential to whatever you desire. yes, हाँ, Wonderful. definitely, And it's a definitely. great learning for all those who are listening. And I think the second point that is important that you brought out was the Guru Shishya relationship. The Shishya gets only as much as as much as he asks, seeks from the Guru, हाँ, हाँ, and हाँ, the Guru is always looking for the Shishya who is seeking. जो मांगता है, जो पूछता है, जिसके में वो एनर्जी है, वो मैच करता है, and that is how the guru shishya relationship blossoms and you grow. Wonderful. Two very very interesting things that have come up now that you became a ayurveda uh, doctor and you graduated. I know that I know some of my classmates who become mbbs doctors also. They हम्म, also find a big challenge once they हम्म, have a degree to they establish themselves. As one of my friends says that knowing is nothing, doing is everything, and doing starts after the graduation, completion, graduation, and after completion. it is like at zero again, reset button. Yes, So you have only learned, now you have to put it into practice. So how was yes. your journey in practicing and in establishing yourself as a ayurvedic doctor? Fine, sir. Before this, before starting to answer this question, actually there is a link. There is a big link. Without that link, we cannot explain anything in front of you. That's why. That's what I told. Na, energy. So that guru is just not a teacher. He start go internally without any word, single word. मैंने एक्चुअली सुनता था वैसा है, गुरु ने ऐसा बोलता, बिना बोल के पूरा पास करता था वैसा। ये एक्चुअली फील किया सर के साथ में, जब हुआ, जब मैं सर के साथ थे तो इन्होंने बताया क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए। मैंने पूछा, सर ने बताया दो चीज, वेरी इंपॉर्टेंट दो चीज, अगर आप शुरू करो, क्योंकि 2001 में 2000 जनवरी में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, 2001 से प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। 2001 में उन्होंने बताया, बैठो 10 साल, आप कुछ मत एक्सपेक्ट करो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बैठो बस 10 साल, 10 साल। that इट्स too नॉट after सो a इजी। professional degree. हाँ, आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री 10 years, बस बैठो, कुछ मत करो। मैंने ये क्वेश्चन, ये क्यों उन्होंने बोला, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। स्टार्ट किया मैंने अथर्व आयुर्वेदा। स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट मंथ 2 पेशेंट देखा मैंने, टोटली 1 month में 2 पेशेंट। सारा मेरा कोलिग्स वगैरह वो कैंप करता था, कैंप में पेशेंट को बोला रहा था, मैंने 2 ही पेशेंट देखा। सर के पास गया, मैंने पूछा सर को, क्या सर ऐसा है, डोंट डू कैंप्स, डोंट डू मेडिकल कैंप्स। तो इट इज, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आपको पूरा समझ में नहीं आया अभी तक सीखा बस, थियोरेटिकली देखा, प्रैक्टिकली गुरु का अंडर देखा है। एक गुरु है, उसका अंडर में Apprenticeship. काम करता है, कुछ जिम्मेदारी भी नहीं है ना, कुछ जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी पेशेंट को लिख के दो, कुछ भी करते रहो, लेकिन गुरु ही विल टेक केयर ऑफ पेशेंट, वी आर नॉट। तो ही
told me that you are learning now, so don't do camps and all. In the camp number of patients आता है, अगर 2 पेशेंट ट्रीट हुआ, 10 लोग ट्रीट नहीं हुआ, वो 10 लोग आपको बारे में बोलते जाएगा. करेक्ट. सच मिस्टेक्स. पेशेंस से 10 साल बैठना चाहिए, यही बोला था सर ने. एंड दैट एनर्जी के बारे में, सेकंड थिंग, दैट्स फर्स्ट पार्ट इज पेशेंस से वेट करो, बस ये थिंग. राइट. सेकंड थिंग, द एनर्जी, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी ना, इट विल कन्वर्ट. सी, हम जो खाते हैं ना फूड, मैं हमेशा बोलते रहता, आपको भी, दिलीप जी सर को भी बहुत बार बोला मैंने. हम पैदा हुआ, कितना वेट था उस टाइम, हम 2.5-3 kg. अब हम 70, 80, 90, 100, किसी ने 100 प्लस. कैसे हुआ? कैसे इतना ये क्या हुआ? खा के ना, फूड से ही हुआ ना पूरा. तो फूड, जो हम बोलते हैं ना निर्जीवा वस्तु, निर्जीवा, नॉन लिविंग थिंग, जो हम राइस को नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं, गेहूं को नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं, और ये मेरे सबको खाने का चीज को नॉन लिविंग. लेकिन नॉन लिविंग से लिविंग कैसा हुआ वो? So that is the conversion, that is the energy. So the food itself convert into your body. Food itself you are converted into the manas. Food itself converted into the brain and Right. intellectual, everything. So that's why that food is very important to conversion. So we completed our graduation. सर को पूछा हमने, पंचकर्मा सेटिंग ओपन करेंगे. पंचकर्मा मतलब आयुर्वेद ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, टॉप 1 ट्रीटमेंट है पंचकर्मा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में. हम करता है ऐसे बोला. सर ने एक ही शब्द में बोला, पंचकर्मा ट्रीटमेंट अब तक चलता था, अब से दुनिया पूरा प्रिवेंटिव सेक्टर देखता है. यू डू योर वर्क ऑन फूड एंड प्रिवेंशन, डोंट आस्क पीपल टू कम हॉस्पिटल. सी द वर्ड्स, क्या क्या वर्ड्स बताया. तो अब तक, तब तक हमने क्या क्या सिखाया? मेडिसिन देखा, पेशेंट देखा, डिसीज देखा, डिसीज पेशेंट ट्रीटमेंट, डिसीज मेडिसिन ट्रीटमेंट पेशेंट. तो हमने, हमारा पूरा दिमाग में क्या था, एक आदमी देखे तो उनका क्या क्या तकलीफ है. एक आदमी देखो, उनका उनका कुछ तो कुछ गड़बड़ है उसमें, वही दिखता था पूरा आंखों में. तो तब दृष्टि में, नजर में वही पड़ता था. नेक्स्ट मेडिसिन. तो एंड में सर ने बोला, जो डोंट थिंक अबाउट मेडिसिन, डोंट थिंक अबाउट डिसीज, थिंक अबाउट द हेल्दी, कि हाउ टू कीप द पर्सन हेल्दी. तो आयुर्वेद वही बताया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम. आधा आयुर्वेद बताया स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आदमी को कैसा रखना है, हेल्दी पर्सन को हेल्दी कैसा रखना. सो दिस टू आर द बेस्ट. दिस वन, क्या बोलते हैं उसका, 2 व्हील रख करके सर ने, हाँ 2 व्हील रख करके हमारा गाड़ी चलाने का भेज दिया. 2 व्हील, एक पेशेंस का व्हील है, एक है हेल्थ मेंटेन, आपका गोल कैसा रहना चाहिए. बस बहुत अच्छा दिया सर ने. डिसीज वाला पेशेंट को देखते देखते आप पेशेंस रखते वाला पेशेंट बने, सो दैट आप तो अपना लाइफ को उस तरह से लीड कर सकें. व्हाट अ हाँ, ये इंटरेस्टिंग. सारा लाइफ को अप्लाई होता है. मैं नॉट ओनली आयुर्वेदा, वट एवर. सो इफ यू वांट अ बिग सक्सेस, वेट फॉर 10 years. इफ एनी पर्सन वांट बिग सक्सेस, वेट फॉर 10 years. हर्डल्स तो आता ही रहेगी. हर्डल्स, अपना हर्डल्स आता है, दूसरों देता है, वो तो रहेगा ही हमेशा. लेकिन हर्डल्स रहेगा, पेशेंस से हम काम करना चाहिए बस. ब्रिलियंट सर, बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये. अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेयर वी टॉक अबाउट अथर्व आयुर्धामा द कॉन्सेप्ट, because हाँ जी. I have visited your facility in Shimoga, and I got to know that it is now become a much more better facility than it was. But even then, मैंने देखा there were a lot of innovative things there for treatment, हाँ, and it is a combination of the panchakarma, the फिर the so-called physiotherapy part of it, and हाँ. also medicine if required, and to what extent it is required. So it was interesting to see a different kind of setup there. So a little about your concept of Atharva Ayurveda. Concept of Atharva Ayurveda is Ayurveda only, nothing more than that, only Ayurveda. Because I believe, not believe, the truth is Ayurveda, Ayu means life.
I means life. Veda means jnanam, knowledge. So about knowledge about the life. तो लाइफ किसको नहीं, सबको है ना, सिर्फ आयुर्वेद वालों को लाइफ है क्या? नहीं, सही बात। सबको है ना लाइफ तो. So that's why that life science is the entire thing. It will so starting from the birth till the end, everything is passes through the science. So Indian science ऐसा ही है. आप आयुर्वेद में जाओ, किसी और साइंस में जाओ, Indian science is telling about everything in the because एक बेस रहता है, उसी बेस से आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स जाओ, किसी भी कोने में साइंटिस्ट बनाओ, टीचर बनाओ, एक बेस तो इंडियन साइंस में है. वो बेस क्या है? मानव के लिए क्या चाहिए, वही बेस है. मानव को क्या चाहिए, तो क्या चाहिए क्या? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फिजिकल हेल्थ. अगर फिजिकल हेल्थ नहीं है तो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हम. अचीवमेंट का छोड़िए, जो अचीव है वो एंजॉय भी नहीं कर सकते. चला जाएगा, सही बात। जो अचीव्ड है वो एंजॉय भी नहीं कर सकते. तो दैट्स वाई फिजिकल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट. दैट्स वाई वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ श्री रामचंद्र को बताता है, जब वो सीखने जाता है तब देखो रामचंद्र, पहले शरीर को स्वस्थ रखना ही चाहिए, बाद में सारा शिक्षण है. शरीर को बिना स्वास्थ्य का शिक्षण कोई नहीं. तो ये बचपन से रहना चाहिए, अब नहीं है वो इतना बड़ा होने के बाद हम स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कोशिश, नहीं, ये बचपन से होना चाहिए. सो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट इज फिजिकल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट. देन कमिंग टू एवरीथिंग, सी फिजिकल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है. आपको अगर फिजिकल आज बुखार आया, तीन तरफ से नष्ट होता है हमको. बुखार आया, बुखार के लिए आप खर्च करना पड़ता है. बुखार का दिन में आपको कुछ भी कमाना मुश्किल है, अर्निंग इट इज नॉट पॉसिबल अर्निंग. तो एक तरफ खर्च रहते हैं, एक तरफ अर्निंग रहते हैं, तीसरो तरफ पेनफुल यानी पेनफुल. सो तो आप अगर खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सपेंस कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं आता, दुख भी रहता है हमेशा. तो दिस दुख के निवारण करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ आयुर्वेद में है, हर एक स्टेज में. दैट्स वाई अथर्वा आयुर्वेदा का बेसिक प्रिंसिपल है आयुर्वेदा, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा. First class. Sir, now we come to this point where when we met, that time you were जी getting into, you believed in something that you had created and you were trying to get that in the marketplace and launch it. Ayudantam. हाँ. I have used it and I believe it is one of the best oral and dental healthcare medicine that I have come across. And a lot of people whom I recommended to, they have also used and they have also come back to me with this. I also know that during the earthquakes or the flood that happened in Kerala, you helped people. Drinking water need not be wasted by brushing and rinsing their mouth. Instead, they can use Ayurveda. They can clean their mouth as well as keep their oral health. So, little about the challenges that you faced in making Ayurveda known to people as a medicine, or in fact as a replacement for a tooth powder or a toothpaste. Fine, sir. Just I'll give a small introduction about factory. So we started our manufacturing unit in 2005. Small, very very small unit in one room. We started because we avoid the unnecessary addition of chemicals. So nowadays patients go for the Ayurveda because of it is natural. It is, but very unfortunate that almost all the products what we are using on the name of Ayurveda, it contains major preservatives. So that hurts me a lot. क्योंकि उसमें almost 0.25% preservative रहना चाहिए था, because of herbal adulteration, because of cultivated herbs, using the cultivated herbs, because of many other things. Water is not impure water. So because of these things, whatever the prepared medicine, it is not a mineral, na, it is a herbs only. So prepared medicine, हाँ, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता था. इसलिए मैंने फैक्ट्री को पूछा, उन्होंने बोला 5% तक हम प्रिजर्वेटिव डालता है. सी 100 ml सिरप पी गए तो 5 ग्राम ऑफ
सोडियम बेंजोएट और मिथाइल प्रोपिन और सोडियम दिस वन बेंजोएट वगैरह। तो इतना खाने के बाद नेचुरल लाइफ कैसे हम बोल सकते हैं? That's why we started our own unit. We are giving only the dry powders and all. So I will tell you one thing: in our factory, there is no preservatives, no colors, there is no this one flavors, there is no taste makers, there's nothing. Whatever the preparation is, entire thing natural. Here we have started to give the dry powders for the treatment of the medicine. So we are getting wonderful success. हमको बहुत लोग बोला आपने ऐसा ड्राई पाउडर पुराना काल जैसा देखे तो लोग नहीं आता, लोग आपको रिजेक्ट करेगा। ठीक है सर, तो बोला था ना 10 साल बैठा हुआ। हम शुरू किया तब बहुत अच्छा सक्सेस मिला और दैट इज द मेजर रीजन अभी हम जो है अभी। तो इन आयुर्दंतम इट इज ए लिक्विड फॉर्म। आई विल टेल यू द आयुर्दंतम इज ए टूथ लिक्विड in the world, first liquid form oral cleansing agent without preservative, without color, without this thing. So we used this one in the 2005 for the patient. So whatever the medicine, what are the 112 medicines we are preparing now, whatever the medicines, all the medicines are, it is proven only in front of us, only proven it is, because one एक तरफ टेक्स्ट बुक है, दूसरी तरफ पेशेंट को देखा है, दिया और रिजल्ट भी देखा हमने। तो इट इज अ प्रूवन मेडिसिन। दैट्स आयुर्वेद डॉक्टर के लिए एक बहुत अच्छा ये है, क्योंकि हर एक आयुर्वेद डॉक्टर एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है, एक लाइफ एडवाइजर है, सब कुछ है वो। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड आयुर्दंतम उस टाइम। तो विदाउट प्रिजर्वेटिव लिक्विड फॉर्म में देना है, बहुत चैलेंजिंग था लिक्विड, क्योंकि हम पाउडर देता तो बना के इमीडिएटली फ्रेशली ले लेता था। लेकिन अभी हम बनाने के लिए कैसा, हम ट्रैवलिंग में रहते हैं, हम रोज बना के नहीं वॉश नहीं कर सकते ना, तो रोज बॉइल करके। सो फेसिंग द बिग चैलेंज एंड गो फॉर सर्चिंग एंड एवरीथिंग। तो हमको एक बार सडनली एक ये आया, आयुर्वेदा में आचार्य ने एक भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ मेडिसिन प्रिपेयर किया विदाउट प्रिजर्विंग एनी, डूइंग एनी प्रिजर्वेटिव्स, एनी कलर्स, एनी फ्लेवर्स। कैसा बनाया वो एक्चुअली हमको एक बहुत अच्छा आइडिया शुरुआत हुआ उस टाइम। तो लिक्विड फॉर्म में विदाउट प्रिजर्वेटिव टोटली आ गया। तो 3 years we take the time to build this one Ayurdantam in the liquid form. So I will tell you what the Ayurdantam now. So we are using the paste every day morning. We are using the toothpaste. So go through the toothpaste. What are the contents of toothpaste? Some of 28 to 29 chemicals are there. Among those, detergents are there, flavors are there, sugar and everything. So early morning we are फर्स्ट टाइम क्या रखता है मुंह में? केमिकल्स क्या रखता है मुंह में? हर एक आदमी ने क्या रखता है मुंह में? केमिकल। कुछ भी बोलो, हर्बल बोलो, हाँ हर्बल बोलो, फॉर हेल्थ, तो फॉर हेल्थ। एंड मैंने पूछा क्वेश्चन को, पेशेंट को पूछा, सर क्या है? मैं तो हम तो खाता ही नहीं ना, पेस्ट तो सूख जाता है वॉश करके। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, ह्यूमन स्ट्रक्चर कैसा बना है देखिए आप लोग। जीभ का नीचे एक छोटा सा रंध्र है, उसका सबलिंगुअल अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एनी इमरजेंसी कंडीशन में हम एक ये रखते हैं ना टैबलेट, जीभ के अंदर एक टैबलेट रख देते हैं, क्योंकि इमीडिएटली रिएक्शन करने के लिए। तो इट इज डायरेक्टली गो टू द ब्रेन, no barrier, no liver, no blood, no stream, nothing, just you keep anything beneath the tongue, it will directly reach to the brain. तो नेचर ऐसा क्यों बनाया देखो। हम रोज खाता है, जो हमने मुंह में रखता है फूड, ब्रेन को मैसेज जाता है ब्रेन को, वो ब्रेन बोलता है स्टमक को ऐसा फूड अंदर आ रहा है, बी प्रिपेयर फॉर डाइजेशन। हाँ, इसी के लिए है वो। हम मुंह में कड़वा रखो, मीठा रखो, कुछ भी रखो, अंदर खट्टा रखो, रखने के बाद इमीडिएटली बोलता है ऐसा फूड आ रहा है, आप बी प्रिपेयर फॉर, बी रेडी विद फॉर द डाइजेशन। एंजाइम कैसे एंजाइम सेक्रेट कर, इसी के लिए वो लिंक है जीभ से डायरेक्ट ब्रेन के लिए। और वो भी बोलता है कितना क्वांटिटी आ रहा है अंदर, कितना क्वांटिटी आ रहा है, सो कितना आपको एक्सपेंशन होना चाहिए, कितना डाइजेशन के टाइम लेना, तो सब के लिए जीभ है। तो इसलिए हम पेस्ट मुंह में रखे तो क्या मैसेज जाता है अंदर? कितना केमिकल आ रहा है? सोप आ रहा है अंदर, सोप आ रहा है। हाँ, उसमें डिटर्जेंट मैक्सिमम
8% डिटर्जेंट ही है उसमें, पेस्ट में। My goodness. तो वो बोलता है अंदर सोप आ रहा है, क्या बोलते हैं जेटी, मतलब स्टमक क्या क्या रिएक्ट करना चाहता है, तो सोप आ रहा है, हमको सोप को ऑब्जर्व नहीं करना, सोप को डाइजेस्ट नहीं करना, और रिजेक्ट करना चाहिए, तो इसलिए इमीडिएटली फूलता है। तो हम लोग सब अभी गैस्ट्राइटिस से सफर कर रहा है। गैस्ट्राइटिस, लोग किसी को पूछे गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस है। तो विदाउट गैस्ट्राइटिस कोई भी नहीं है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 98% लोग गैस्ट्राइटिस हाँ है। क्यों? पेस्ट मुंह में रखते हैं, गैस्ट्राइटिस अपना। सो दैट्स व्हाई इट इज द बेस, ये है काज फॉर गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस एंड एवरीथिंग। ये गैस्ट्राइटिस इज नॉट ए सिंपल डिसीज है ना, एक बोलने के लिए एक छोटा सा गैस्ट्राइटिस है, वो आगे बहुत बड़ा डिसीज बनने का। क्योंकि हम एक देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, एक पेड़ देखो, बहुत अच्छा सुंदर पेड़ हमको दिखता है, आप इमीडिएटली सोचो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रूट है ना। पेड़ बहुत अच्छा है, क्यों? उसका रूट अच्छा है, बहुत रूट अच्छा है, इसीलिए पेड़ अच्छा है। तो हमारा रूट क्या है? Stomach. अगर एक आदमी बहुत अच्छा है, क्या रूट है हमारा? Stomach. स्टमक है, पूरा इंटेस्टाइनल स्टमक। तो द इंटेस्टाइनल हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द योर हेल्थ, द रूट हेल्थ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लांट हेल्थ। आप Brilliant. मानते हैं ना ये? तो Brilliant. दैट्स So, व्हाई, हाँ, सो जैसे दैट्स root व्हाई, absorbs and sends to the entire tree, the intestines हाँ, absorb and send to the body. दैट्स व्हाई हम छोटे बच्चे थे, इतना बड़ा हुआ ऑब्जर्वेशन होकर के, हम मुंह में पेस्ट रख करके, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस मतलब स्वेलिंग है, सूजन है अंदर, आइटिस मतलब सूजन है, हम बोलते हैं ना, वो अच्छा वर्ड है, आइटिस। टॉन्सिलाइटिस है, स्टोमेटिटिस है, गैस्ट्राइटिस है, कोलाइटिस है, कंजंक्टिविटिस है, वोटाइटिस है। तो आइटिस 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 वो अच्छा वर्ड है। तो वो अंदर पूरा इंटेस्टाइन को थोड़ा मोटा होता है, मतलब स्वेलिंग होता है। तो स्वेलन इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन कम करता है, करेगा ही नहीं, नहीं तो कम करता है। तो अगर आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता है, हर एक डिजीज के लिए यही है रूट कॉज, हर एक सर डिजीज ये एक्सीडेंटल का छोड़ इतनी के। अच्छी चीज है, और ये लेकिन इसको एज अ प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट करने के लिए देयर इज अ बिग चैलेंज, एंड आई नो यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ difficulties in trying to launch the हाँ, product, and then हाँ, marketing was a challenge. So how did you get the success later on? फाइन, फाइन सर। तो on this base we started, so we are start to promote the health to public. Very unfortunate that I will tell you that we are the very weak in marketing, because वो दिमाग अलग ही चाहिए, उसका कुछ कुछ अलग आपको भी पता है, दिलीप जी के तो बहुत, हमने बहुत उससे गाइडलाइंस लेता था हमेशा, मार्केटिंग कैसे करना, फिर भी वो गाइडलाइंस है हमको अंदर नहीं घुसता था। That's why we are facing much challenges in the marketing. ये पेशेंट में चैलेंज नहीं देखा हमने, पेशेंट में इतना आसान हुआ, ट्रीटमेंट में आसान हुआ, सब में आसान हुआ, लेकिन बहुत बिग चैलेंज मार्केट में। इस मार्केट में सक्सेस, देखिए हमने लॉन्च किया, विजय संकेश्वर ने हमको सपोर्ट किया, उन्होंने एक्चुअली लॉन्च किया, विजय संकेश्वर, डॉक्टर विजय संकेश्वर आपको जाना है, बहुत लोगों को पता है, वीआरएल का चेयरमैन है, उन्होंने हमको सपोर्ट करके हुबली में हमने लॉन्च किया 2016 जून में। तो तब से लेकर एक साल में हम लोगों को 46,000 पीपल को हमने आयुर्वेद को पहुंचा, कर्नाटक और इस सारा इंडिया में, मेजर कर्नाटक में 46,000 यूनिट्स इज नॉट ए स्मॉल थिंग इन 1 ईयर। तो लेकिन ये जो बोला ना हमने, मार्केट में फेल्यूर कहाँ हुआ, हमने बहुत छोटा सा प्राइस रख करके, हम जो पेशेंट का देखता था ना, बहुत छोटा प्राइस, एमआरपी इज वेरी लेस, दैट टाइम वी पुट सम 59-39 रुपीज उसमें रख करके, बहुत वो इधर खर्च, प्रिपरेशन खर्च के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन वो मार्केट के लिए, so 40 after selling a 46,000 unit in the market because of MRP, कुछ भी नहीं है, अर्थात ये एंड में कुछ भी नहीं है, बस खर्च किया। तो फिर we lost some much amount, some 8 lakhs, more than 8 lakhs we lost. Actually we are committed to 18 lakhs. क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉसिंग, उस टाइम में स्टॉप लॉसिंग करके 8 लाख में हम ये कर दिया, स्टॉप लॉसिंग कर दिया। तो इट इज एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई I tell you that keep a sufficient MRP for your product. Keep a sufficient MRP. Sufficient MRP means
not for our sake, not see इतना अच्छा प्रोडक्ट है, हमको लगता है जो यूज कर रहा है वो भी बोल रहा है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन हम बहुत लोगों को नहीं पहुंचा है ना. we are we are actually doing a wrong thing because we are not reach to the needy people. That's wrong thing, you know, again, because of MRP. That's why one request is that keep a sufficient MRP. बहुत लोग उधर बसते हैं और आप भी बसता है. Sir, one of the gurus that taught me a point that charity begins at 60% profit, and I keep telling this again and again that Yes, sir. if I make profit, I can give to the poor out of my profits. But let me take, keep the MRP. And absolutely, you're absolutely right. That is one of the reasons why markets cannot develop and हाँ, products आपको cannot बहुत develop. थैंक्स बोलना चाहिए दिलीप जी इसके बारे में, क्योंकि हमेशा बोलता था हम उसमें नहीं मांगता था, लेकिन फाइनली वी केम टू एक्सेप्ट योर दिस वन कॉन्सेप्ट ऑन द मार्केटिंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीडी पीपल को नहीं पहुंचाए तो क्या है, जीवन का क्या है. Absolutely. So, sir, Ayurvantam के बाद the second success was little delayed, I think, and but in the COVID times, there was a lot of challenge. Doctors were having a lot of work to do, and there were so many emergencies. So I also know about you treating the Ramakrishna Matha रामकृष्ण. Swamiji, who got cured in 3 days, and there are various other cases that you have cured. So, how did you take up the challenge for COVID, and how did you go about it, helping people in your area? If you could also सर एक्चुअली डे वन. accept it first of all, because there was हाँ सर. a lot of क्या fear. सर? So, how did people हाँ accept हाँ, it? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर. तो डे वन जब लॉकडाउन 22 मार्च 2020 में हुआ था, उस डे वन से हम एक्चुअली लॉकडाउन में हमारा गांव को गया था. दैट वाज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला. आ, हम शिवमोगा आया एक 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 बंडल ऑफ बुक्स से. हमारा गांव बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से शिवमोगा एक बाइक और एक बुक्स, एक एक बैग. तो हम लॉकडाउन में एक बैग ऑफ बुक्स में गांव गया, बस बैठा. वो एक्चुअली कितना कितना पीरियड है वो डे वन से. हम स्टार्ट सर्चिंग क्या क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए. तो इधर जनपदों ध्वंस बोला आचार्य ने, जनपदों ध्वंसा. तो जनपदों को ध्वंस करने वाला डिसीजेस आते रहेंगे. Pandemic, तो जिसको इंग्लिश में हाँ, बोल देते हैं. पेंडेमिक, हाँ पेंडेमिक डिसीजेस. तो इट इज दैट टाइम क्या करता था लोग, रिवर का पास करके दूसरा गांव को जा जाता था बस. एक रिवर की कहाँ आता तो उसका जा, क्योंकि उधर का रिवर इज द बिग बैरियर फॉर द टू क्रॉस दिस कम्युनिकेशन. तो nowadays नो रिवर नथिंग, फ्लाइट उधर से जाता है इधर से आता है सब. सो वेरी फास्ट इट विल स्प्रेड एंटायर वर्ल्ड. So you know everything. So we started some start to read whatever what that time. तो हमको शुरू में हुआ एक मरीच, मतलब काली मिर्ची. काली मिर्ची बोलते हैं ना उसको, मरीच राउंड वाला. Pepper. मरीच, हाँ पेपर. So that black pepper is the best medication what we found first time. Because one thing, I'm not going in detail about the black pepper. It is only two things आचार्य ने बताया उधर. भूत संतान नाशनम. भूत मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दिस वायरल्स एंड ऑल. भूत मतलब, तो भूत मतलब इट नॉट इनविजिबल थिंग्स, लेकिन Right. भय उत्पन्न करता है. भूत वही है ना, भूत मतलब इनविजिबल लेकिन भय उत्पन्न करता है, वही तो है. तो वायरल डिसीज के लिए आप भूत संतान नाशनम. संतान मतलब उसका चेन भी ब्रेक करता है. तो उतना अच्छा है मरीच काले में वो जो पेपर बोलता है. So that's why we got a good this one. That time also, I will tell you one thing. Start किए मैंने, गुरुजी ने सपोर्ट करता था. So गुरुजी 2006 में शरीर त्याग करके गया, लेकिन इस टाइम भी एक गुरु आया. हम बोलते हैं तेजानंद गुरुजी करके. वो अवधूत है, लेकिन उसका नाम भी नहीं है, कोई भी नहीं बोलता नाम. और कुछ भी पूछो, मतलब कुछ भी बोलो. नेम वैसा नहीं है. हाँ, वैसा नेम तो नहीं है मेरे के लिए, कुछ भी बोलो. तो उनके साथ रोज डिस्कशन चलता था. वो तो बहुत आयुर्वेद, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, वो सारा सब कुछ जानता था. कहाँ से पढ़ा, मैंने बोले कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ने से आता है करके पता है आपको.
नहीं, पढ़ने से तो नहीं आता, ये कृपा से आता है, गुरु कृपा से। मेरे को आयुर्वेद वही है, वैसे ही आई है, गुरु कृपा से। और जिस सिर्फ पढ़ने से अहंकार बढ़ते जाते हैं हमारा, कि सिर्फ पढ़ो, रैंक आओ। मैं गुलबर्ग यूनिवर्सिटी के सेकंड रैंक है, सिर्फ क्या बोलते हैं वो, अहंकार पैदा होता है। लेकिन गुरु कृपा से वो अहंकार कभी नहीं पैदा होता है। इस बाद और एक दिलीप जी सर, हम्म, आप एक बताना चाहता हूँ, एक नेगेला सटाइवा करके एक ड्रग आया, कृष्ण जीर का नेगेला सटाइवा। हम्म, इट इज 2012 में एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ। उस टाइम भी कोरोना था, लेकिन ये अच्छा, ऐसा ये स्ट्रेन नहीं है। कोरोना वायरस का ऊपर ये नेगेला सटाइवा डायरेक्टली इट विल एक्ट ऑन कोरोना वायरस। आई डोंट नो व्हाई वर्ल्ड भूल गए इतना अच्छा ड्रग के लिए, पता नहीं। नेगेला सटाइवा डायरेक्टली वो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ 2012 जून 14 में। अच्छा, सो नेगेला सटाइवा इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कोविड। देर इज, लेकिन मैं उस टाइम मेरे को डॉक्टर अंजनी मूर्ति सर था, मतलब मोदी जी तक पहुंचा सकता था वैसा आदमी था, लेकिन उनको भी बोला, पता नहीं क्यों वो एक्सेप्ट नहीं किया। क्या क्या उस टाइम मे बी फियर था, कुछ भी था, कुछ लोग क्या क्या सोचता था पता नहीं उस हम्म, टाइम। लेकिन हमने शुरू किया, गुरुजी ने बताया देखो कितना लोगों को आप पहुंचा सकते हैं उतना तो आप शुरू करो। हमने वो गांव में बैठ करके, वही 50 फैमिली का गांव, उसी में बैठ के एक खेती में बैठ के शुरुआत किया हमने। उधर से सिर्फ ऑनलाइन से शुरू किया, स्टार्ट करो करके ऑनलाइन से। तो उस टाइम ये था, राड रग का बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कहाँ से लाओ। correct, तो वो किसी का उनके एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर के, हम हमारा कार लेकर के क्विंटल क्विंटल रॉ मटेरियल उसमें डाल के लेके आया था। क्विंटल क्या, टन तो लेके आया, डाल डाल के तो शुरू किया। हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला, देखिए अपॉर्चुनिटी एक बहुत ये है, अपॉर्चुनिटी हमें को नहीं मिलता है, मिलने के टाइम में हम अच्छा तरह से यूज करना, क्योंकि कैश तब करना तक तो चाहिए। हमने, हाँ वो मिला था। रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम और स्वामी विनयानंद सरस्वती, उन्होंने पूछा डॉक्टर जी आप मेडिसिन दे दो, मेरे को आयुर्वेद छोड़ के कुछ भी नहीं चाहिए। सी इट इज द करेज, सी द करेज। लोग करेक्ट, बोलते थे अयो मर जाता है मैं, डॉक्टर जी आप आयुर्वेद करो। वो एक बहुत बड़ा सपोर्टिव भगवान से आए, क्योंकि मैं पूरा बिलीव करता हूँ रामकृष्ण जी का बात का अंदर ही हूँ। वो तो पीछे हम दिखता है पूरा, सर, जी पीछे दिख रहा है सर। हाँ जी हम्म, हाँ सर जी है ना। वो विवेकानंद रामकृष्ण आश्रम का प्लेड्ज है, हम उसका उसी का संतान है। तो वो स्वामी जी ने बताया हमको लेकिन टेक्निकली मतलब वो लीगल प्रॉब्लम आया उस टाइम। मैंने स्टार्ट किया व्हाट्सएप में वगैरह ले लो करके, मेरे को कॉल आया एक, डॉक्टर जी आपका ऊपर एफआरआई बनता है, एफआरआई FIR डालते हैं बनता है। आपके ऊपर। हाँ आप मत करो ये चीज, आप करना नहीं चाहिए, क्यों कोविड में ऐसा ऐसा चीज नहीं है। मैं ऐसा क्या लड़ाई करने वाला नहीं है मैं, ठीक है नहीं करता हूँ मैं करके बंद कर दिया वो मतलब फेसबुक में योग करने के लिए सारी व्हाट्सएप वगैरह इसमें। तो स्वामी जी ने इन्हें बोलने के बाद हमने उधर पूछा, तो लिक्विड डीसी को पूछा, हमने डिस्ट्रिक्ट सर्जन को पूछा, लोगों को पूछा, नहीं हम नहीं परमिशन नहीं देते, हम ही ट्रीट देखिए ये क्या चीज है, हम परमिशन नहीं देते, हमारा मेडिसिन ही खाना चाहिए, लोग मरता है जीते पता नहीं। पर हमको एक अपॉर्चुनिटी दे दो, नहीं है नहीं दे सकते अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है आयुर्वेद में नहीं। लेकिन स्वामी जी ने एक लेटर लिखा, मोदी जी को भी लिखा है, मेरे को आयुर्वेद चाहिए नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, मेरा का ऑन द ऑफ क्या संविधान का बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हाँ। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं आयुर्वेद ही लेना चाहता हूँ। तो तब डीसी भी हाँ बोलना चाहिए बोला, और डिस्ट्रिक्ट सर्जन भी हाँ बोला। हम मेडिसिन स्वामी जी को भेजा। उसका चीज अलग भी था, हम फूड देता था रोज स्वामी जी को बाहर से ही। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फूड एंड मेडिसिन, दोनों मिला के 3 दिन में स्वामी जी को नेगेटिव आ गया, बहुत वंडरफुल। अच्छा रिजल्ट है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड फ्रॉम द आयुर्वेदा एक आदमी कोरोना से बचा है, 2020 जून 19, दैट इज द फर्स्ट टाइम इन द। तो उस टाइम वो पेपर वाले ने आया, लेकिन हम मैं पर्सनली मैं
क्वारंटाइन में था, बाहर आना क्वारंटाइन में डाल देता, बाहर आना नहीं चाहिए, रोज आकर के एक फोटो लेकर के जाता था, एक आदमी ने आकर के आप इधर ही रहना चाहिए, होम क्वारंटाइन रखा दिया था एटलीस्ट। तो उस टाइम डॉक्टर हिरेमठ जी, मेरे फ्रेंड है डॉक्टर हिरेमठ, उन्होंने बहुत परेशानी करके येडियुरप्पा जी के पूछ के बहुत परेशानी करके परमिशन दिया। We came to that we are treating the COVID through Ayurveda and got good, very good success and media वगैरह वो सर्च कर दिया। तब से शुरू करके क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस, स्वामी जी को उतना क्रिटिकल नहीं था, सिर्फ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता था, लेकिन उससे लेकर के कम से कम 50,000 पेशेंट को अटेंड किया मैंने कोविड कंडीशन में। सुपर। ऑल आर ओवर फोन कॉल, वो ऑल आर ओवर फोन कॉल, हम 24/7 काम करना पड़ता था फोन कॉल पे। वो क्रिटिकल कैसा है, वेंटिलेटर में डाला। ये क्रिटिकल, दो क्रिटिकल केस आप मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बल्लारी में केसेस है, वो 30% होता ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, SpO2 कंसंट्रेशन 30%। उस टाइम 30% में वो क्या एलोपैथी भी कुछ नहीं कर सके, कोई भी कुछ नहीं कर सके। स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन रेट इज was very high in that condition and we start our treatment। तो क्या मिरेकल है, 8 आवर्स 12 सुबह दोपहर 12 बजे हमने शुरू किया, इवनिंग 8 o'clock 98% SpO2 98%। तो 30 to 98%, that was a very miraculous case। but like that age person of age person is 34 years he was। so that so after इन्होंने उनका ब्रदर फोन करके मेरे को बोला सर 30% था अभी 98%, ये क्या मिरेकल बना दिया मेडिसिन। तो तब से वो भी देखिए टेक्निकल मतलब लीगल का क्या है, वो उधर का डॉक्टर ने पर्सनली यूज करना शुरू किया, लेकिन पेशेंट को यूज करना परमिशन नहीं। ये बहुत बड़ा, हाँ ये बहुत बड़ा ये आया मेरे को प्रॉब्लम है। तो हाँ वो फोन करके मैंने बनाने के बाद वो फोन मैंने वो रिकॉर्ड करके सब आप लोगों को, जो हमारा हॉस्पिटल फ्री लाइफ जो ग्रुप था वो 50,000 मेंबर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 17 कंट्रीज लोग हॉस्पिटल फ्री लाइफ ग्रुप में है अभी, 17 कंट्रीज है अभी, 50+ है अभी। तो उन लोगों को मैंने भेज दिया, तो सारा वर्ल्ड से डिमांड शुरू कर आना लगा, डिमांड शुरू हुआ। तो तब से हम वायरोपायरिन पाउडर और उसका साथ जो तो बेस्ड ऑन द कंडीशन वी स्टार्ट टू सप्लाई। दैट टाइम एक्चुअली मेरे को बहुत परेशानी हो हेल्थ में वगैरह, वो कान में रखो, हमेशा बात करो, ये उसका क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल से क्रिटिकल। तो सेकंड क्रिटिकल हमने फेस किया, एक 92 इयर्स का बुढ़ा था, वो ICU वेंटिलेटर में था, उनका शुरू किया। वो अभी भी बोलता है सर जी आपसे बच्चा है मैंने, वो अनकॉन्शियस भी हो गया था पूरा, मतलब कोमा में हुआ था। मैंने शुरू किया ड्रग, तो उस टाइम जो कॉम्बिनेशन बना के शुरू किया, अभी भी हम उस कॉम्बिनेशन लंग्स के लिए यूज किया। तो तब से बहुत ये आया। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड दिस प्रोडक्ट एंड दिस acceptance and everything, so we get a good success in COVID। So despite all challenges, you went ahead, treated people, helped save lives, helped control COVID. Wonderful. It is really, very, if I were to say, for all of us who are listening, it is a great lesson to learn that despite all challenges, if you believe in doing and you know what you're doing is right, you need to go ahead and practice it and do it so that you achieve the desired results. You don't concentrate on the results or on the money or the success, but do your job and do it to the best possible way. Wonderful, doctor. It was wonderful. There are few questions that are there, and if you Thank could talk about it. One is about obesity, of course, you। and how to control obesity. Other is about sugar and BP, Okay sir, which I will is tell you lifestyle brief। diseases. Nowadays infectious diseases are very less, only the lifestyle disorders or metabolic disorders। all these diseases are because of our food style and lifestyle job। so this is a food style, just simple most remedy for this one is intake and exit should be proportionate. You have to maintain the intake and the exit, so input and exit should be equal।
अगर बैटरी हमेशा चार्ज करते हैं, मोबाइल यूज नहीं करते, क्या होता है? सूजन होता है ना बैटरी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वही सूजन है आप जो ओबेसिटी बोल रहे हैं, वही सूजन है। इनपुट ज्यादा है, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी लेस। तो इनपुट नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी और क्वालिटी आल्सो। नाउअडेज हम क्या सोचते हैं, सर एक खाए तो क्या मतलब, क्या खाना चाहिए, अच्छा अच्छा चीज क्या खाना चाहिए? तो खाने से कुछ नहीं मिलता है। देखिए, बुक अगर मेरे पास इतना लाइब्रेरी है हमारा घर में, मैं बुद्धिमान नहीं बनता हूँ। पढ़ने के बाद अगर वो पढ़ने को जीर्ण होने के बाद ही आता है। तो सेम थिंग, अच्छा फूड खाने से आपको हेल्थ नहीं मिलता है, वो डाइजेस्ट करने के बाद ही हेल्थ मिलता है। तो बिना डाइजेशन मतलब मोशन जाता है सर, मैं अच्छा डाइजेशन वो नहीं है, वो रिजेक्टेड पार्ट है वो। तो अच्छा ऑब्जर्प्शन कहाँ रहते हैं, तभी अच्छा हेल्थ आता है। सो इनपुट एंड एग्जिट शुड बी प्रोपोर्शनेट। आप कितना भी खाओ, लेकिन अच्छा तरह से फिजिकल एक्सरसाइज करो। अगर फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं, कम ही खाना चाहिए। So it is in food, in the form of quality as well as quantity, both. So that's very important for all the today's metabolic disorders, including cancer. So input is more exit. So that is a very important for the diabetic as well as this one. And for diabetic, I will tell you so very very frank opinion. I will tell you that today's diabetic patient अगर 100 लोग है तो 80 लोग are fake diabetics. They are not at all a diabetic. 80 among the 100 are not a diabetes. It is so called labeled as a diabetes because only 20% जो people है वो originally diabetic है, उनको medicine चाहिए, उनको तो 80% only sugar rise in the blood. शुगर, तो एक्चुअली मधुमेह क्या बोलता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज मतलब यूरिन में शुगर एक्सेसिव, एक्सेसिव नहीं, यूरिन में शुगर पास होता है हाँ, बाहर। हाँ, इट इज मधुमेह। तो मूत्रवाह स्रोतो विकार है, मतलब मूत्र का विकार है। हम क्या करते हैं, कौन करते हैं मूत्र का मतलब यूरिन का टेस्ट कौन करता है? हम ब्लड टेस्ट करके उसमें हम लेवल फिक्स कर दिया। तो बिकॉज हम बोलते हैं शुगर खाने से शुगर बढ़ता है, नहीं है, वो झूठ है। शुगर खाने से शुगर इंडिकेटर बढ़ता है, आरबीएस लेवल बढ़ता है, लेकिन आप भाग के आओ 2 दिन तक, थोड़ा देर थोड़ा डिस्टेंस तक आप 1-2 किलोमीटर भाग के आओ, एक ही 10 किलोमीटर वॉक करके आओ, जो खाया सारा शुगर डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इजीली एनर्जी रिलीवेबल है। आप ऑयल खाने से डायबिटीज बनता है। ऑयल, आजकल हम ऑयल का वो चीज बहुत ज्यादा खाते हैं लोग, बहुत ज्यादा खाते हैं। छोटा सा बिस्किट लेकर के, बिस्किट में पाम ऑयल रहते हैं, मैदा रहते हैं, तो हम फूड नहीं खाता सर, 2 बिस्किट खाता हूँ। सो इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग है। तो ऑयल, कितना लोग डायबिटिक है, आप देखिए एक बार, आज ऑयल खाओ, कितना दिन में डायबिटिक कंट्रोल होता है? आज स्वीट खाओ, कितना दिन में कंट्रोल होता है? सेकेंड डे के थर्ड डे में स्वीट खाने वाला पूरा खत्म होता है। अगर आप स्वीट खा करके 10 किलोमीटर वॉक करके आओ, उसी टाइम वक्त वो नॉर्मल होता है। लेकिन ऑयल खाने के बाद आप वॉक करके आओ, कुछ भी करके आओ, लेकिन 15 दिन तक, मिनिमम 15 दिन तक शुगर लेवल हायर रहता है। तो दिस इज द बेसिक रीजन। जो आप लोग डायबिटिक डायबिटिक बोलते हैं, वो ऑयल खाना कम करो, कितना चाहिए उतना ऑयल खा के देखो, अपना डायबिटिक पूरा कम होता है। राइट सर, एक सवाल और। स्थूलकाय ಹಾಗೂ गैस्ट्रिक या सब ऑलरेडी कवर हो चुका है। सो वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत लोगों को बहुत कुछ आज मिला होगा, आई एम श्योर। आज का ये डिस्कशन है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ दोज हु हैव वॉच्ड, हु हैव सीन, हु हैव हर्ड, यू हैव फाउंड वैल्यू इन दिस, शेयर इट टू एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज what we are talking about here is not only living your life healthy, but living your life healthy in every way, physically and mentally, and enriched life. So I have also pasted in the group the link to doctor's WhatsApp group, the Telegram group, and feel free to join in, get the nuggets of wisdom that you get from there, and lead a healthy life. Thank you so much, doctor, for taking time out of your busy schedule. I know you've been cutting some calls when we were discussing. There are a lot of patients waiting for you.
Thank you for ऑनलाइन being, कंसल्टेशन चल रहा है सर. yeah. So thanks for being patient with us and answering all our questions. Thank you so much. We हेलो. I think this is very little time to spend with you. We might look at getting you again because there are, and I request all of them to share whatever questions that you want to ask, whatever more you want to understand from Doctor in the group, so that we will collate all that and we'll see if we can get him again and share in a different program. This is about talking about how a common man, despite of all challenges, can move with confidence and conviction and make it known to the people that we have it in us to make success. And that is what Dr. Mallikarjun Dambal has done in his life. We heard it from him. Thank you so much, sir. We will definitely like to get back to you once again as and when we get the time. Thank you so much, everybody who's joined the show. थैंक यू सर. And थैंक यू. we look forward to meet you